Hello students, welcome back to the lecture series of accounting paper number 1 for CA intermediate. So till now we have covered 2 lectures of branch accounting. The new chapter was started 2 lectures back, and in these 2 lectures we have understood the concept of branch, the difference between the branch and a department. We have also understood the types of branches. There are 2 main types of branches, which are inland branches and the foreign branches. The inland branches can be classified into dependent and independent branches, whereas foreign branches are always independent. Further, we studied that these independent branches have to prepare their final accounts on their own. So a branch is independent when it has the freedom of preparing its own financial statements. It can maintain its own set of books of accounts. So the target of this topic of independent branch is to finally consolidate the results of the group as a whole. So what I mean to say is that if there is a head office and there are 5 different branches, then we have to find out the net results, the combined results of all the 6 units taken together, in which 1 is your head office and 5 are the different branches. So we have to learn the technique of preparing the financial statements of this entire group, for which we had discussed the very first topic. The main topic of this particular topic of independent branch was the recording of the transactions, that how do we record the transactions in the books of accounts of the branch as well as the head office. So there were some set of rules. Branch will make its books of accounts according to the double entry system. Whenever there shall be an inter-unit transaction, for example, a transaction has taken place between the Mumbai branch and the Delhi head office, then both of these have to record this transaction in their own books of accounts. For doing so, the head office will open a branch account and the branch will open a head office account, right? They will prepare their own trial balances, they will prepare their own financial statements, and at the last they will merge them together. So our target is to learn the technique of merging, but before that we had discussed some of the basic journal entries of head office and branch. So in the last class I gave you one very small homework, which was to revise all of these entries. I hope all of you might have completed that thing, and if you have any doubt, you can still contact me for your problems, and definitely I will try my best to get them resolved at the earliest. Okay, so let us continue further now. I am writing topic number 2. Topic number 1 for independent branch was the recording of transactions. Okay, topic number 1 was the recording of transactions. Between whom? Between the head office and the branch, or alone for the branch. Now we are moving ahead with the second point, that is the inter-branch transactions. Second point is inter-branch transactions. The merging would be discussed, the merger would be discussed in the 4th step. Okay, so before that we are learning some of the more basic points. And the second basic point is inter-branch transactions. और आपको समझना है इसको बहुत अच्छे से, inter-branch transactions. तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके सामने लेके चल रहा हूं. अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, केवल समझना है. Assume that head office is in Delhi. Okay, assume that head office is in Delhi. And this Delhi head office has many branches. But for the sake of simplicity, I am just taking 2 branches in my example. Okay, it has although many branches, but I am taking only 2 branches for simplicity purposes. One is the Mumbai branch and other one is the Chennai branch. Okay, I am taking 2 branches, Mumbai branch and the Chennai branch. तो हुआ क्या है, मुंबई ब्रांच ने चेन्नई ब्रांच के लिए गुड्स परचेज किए हैं. ठीक है, assume that Mumbai branch has purchased goods for the Chennai branch. So how will you record this transaction?
बिकॉज अभी तक जो हमने बात करा था इंटर यूनिट ट्रांजैक्शंस का, वो था हेड ऑफिस और ब्रांच के लिए। प्रैक्टिकली अगर यहां पे देखा जाए तो हेड ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट किसका है? दो डिफरेंट ब्रांचेस का है, जिसमें से एक है मुंबई ब्रांच और एक है चेन्नई ब्रांच। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग कैसे किया जाएगा? क्या ये ट्रांजैक्शन ओनली मुंबई ब्रांच में रिकॉर्ड होगा? क्या ये ट्रांजैक्शन ओनली चेन्नई ब्रांच में रिकॉर्ड होगा? या फिर ये ट्रांजैक्शन ओनली हेड ऑफिस में रिकॉर्ड होगा? या फिर ये ट्रांजैक्शन तीनों में रिकॉर्ड होगा? तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें हेड ऑफिस का तो रोल ही नहीं है, क्योंकि मुंबई ब्रांच ने चेन्नई ब्रांच के लिए गुड्स परचेज करे, तो हेड ऑफिस का तो इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब हेड ऑफिस में एंट्रीज हमें नहीं बनानी चाहिए, बट डेफिनेटली हमें मुंबई और चेन्नई में एंट्रीज क्रिएट करनी चाहिए। इज दैट सो? आपका सोचना ठीक है, बट ये इनकरेक्ट है, ये टेक्निकली इनकरेक्ट है। आप समझिए, अगर हेड ऑफिस को पता ही नहीं होगा कि ब्रांच ने आपस में क्या ट्रांजैक्शंस कर लिए, तो फिर तो सारी ब्रांच आपस में डीलिंग कर लेंगी और हेड ऑफिस को कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। राइट? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जब भी ब्रांच आपस में एक दूसरे से डीलिंग्स करते हैं तो उसकी नॉलेज हेड ऑफिस को हमेशा होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि हेड ऑफिस के अंडर ब्रांचेस वर्क कर रही हैं। ऑल द ब्रांचेस आर वर्किंग अंडर द हेड ऑफिस। So if the branches want to deal with each other, the information should be supplied to whom? To the head office. So even if the transaction is inter branch, अगर कोई ट्रांजैक्शन ब्रांच से ब्रांच के बीच में हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस के यहां पर भी होगी। यानी मेरे इस एग्जाम्पल में हमें तीनों जगह पर एंट्रीज क्रिएट करनी है। दिल्ली हेड ऑफिस में भी एंट्री क्रिएट करना है, मुंबई ब्रांच में भी एंट्री क्रिएट करना है और चेन्नई ब्रांच में भी एंट्री क्रिएट करना है। इट माइट बी साउंडिंग वियर्ड, बट थिंक इट लॉजिकली। अगर आप हेड ऑफिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर सारी ब्रांच आपस में ही डीलिंग्स करते जाएंगे एंड हेड ऑफिस को इसके बारे में कभी भी नॉलेज ही नहीं रहेगा। फिर हेड ऑफिस की नीड क्या है? हेड ऑफिस इज एक्टिंग लाइक अ पेरेंट फॉर whom? फॉर इट्स सन्स। कौन है इसके सन? कौन है इसके बेटे? मुंबई ब्रांच एंड चेन्नई ब्रांच। तो क्या आपको लगता नहीं है कि हेड ऑफिस को सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए? द पेरेंट मस्ट नो दैट व्हाट आर देयर किड्स डूइंग, राइट? सो दिल्ली हेड ऑफिस विल आल्सो रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ हाउ टू रिकॉर्ड इट? अब इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाए? तो बच्चों बहुत सिंपल सा रूल है, सुनिएगा आप ध्यान से। मुंबई ब्रांच ने चेन्नई ब्रांच को गुड्स परचेज किया था, मुंबई ब्रांच ने चेन्नई ब्रांच के लिए गुड्स परचेज किया था, तो हमें यह मान के चलना है कि मुंबई ब्रांच ने चेन्नई ब्रांच के लिए नहीं, हेड ऑफिस के लिए गुड्स परचेज किया था। ठीक है? आपको क्या मानते हुए चलना है कि मुंबई ब्रांच ने जो ट्रांजैक्शन है वो चेन्नई ब्रांच के साथ में नहीं करा, हेड ऑफिस के साथ में किया है। क्या आपको मेरी ये सिंपल सी बात समझ में आ रही है? इट इज टू बी अज्यूम दैट मुंबई ब्रांच has incurred the expenditure not for the Chennai branch. Mumbai branch has incurred the expenditure for head office. ये assumption लेके चलना होगा जब भी क्या होगा, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन होगा। इन द सेम वे चेन्नई ब्रांच को ये नहीं सोचना है कि उसको गुड्स मुंबई ब्रांच से मिल रहे हैं, चेन्नई ब्रांच को ये सोचना है कि उसको जो गुड्स हैं वो कहां से मिल रहे हैं? हेड ऑफिस से मिल रहे हैं। So what do we mean to say at this particular point? That head office is basically a mediator between the two branches. तो आपको ऐसा मानते हुए चलना है कि जब भी इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन होगा तो वो ब्रांच से ब्रांच डायरेक्टली नहीं हुआ, इट इज वाया द हेड ऑफिस। ठीक है? चाहे से मुंबई से चेन्नई फिजिकली गुड्स पहुंच चुके हैं, बट अकाउंटिंग वाइज अपन क्या मान के चलेंगे कि पहले वो जो गुड्स हैं वो मुंबई से दिल्ली गए, बाद में दिल्ली से चेन्नई आए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करना। प्रैक्टिकली तो क्या होगा, मुंबई से चेन्नई डायरेक्टली आप गुड्स सेंड कर देंगे, बट जो एंट्री है उसको आपको घुमाना पड़ेगा। एंट्री को हेड ऑफिस के यहां से घुमाना है। यानी मुंबई ब्रांच को यह मानना है कि उसका ट्रांजैक्शन दिल्ली एचओ के साथ में हुआ है, वहीं पे चेन्नई ब्रांच को भी यह अज्यूम करना है कि उसका ट्रांजैक्शन दिल्ली एचओ के साथ में हुआ है। नोबडी विल अज्यूम दैट कि ट्रांजैक्शन दोनों के बीच में हुआ है। यानी कि मुंबई और चेन्नई को यह नहीं मानना कि उन्होंने आपस में ट्रांजैक्ट किया। नो, मुंबई विल अज्यूम
it has transacted with the Delhi HO, and Chennai branch will also assume that it has transacted with the Delhi HO. बात समझ में आ रही है बच्चों? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में बहुत बार इस चीज को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे, वेन एवर देयर इज एन इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट सच ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड और राउटेड वाया द हेड ऑफिस. ओके, लिखेंगे बच्चों इस बारे में. whenever a transaction takes place between any two branches, whenever a transaction takes place between any two branches, then it is to be recorded in books of accounts. It is to be recorded in books of accounts of branch as well as head office. It is to be recorded in the books of accounts of branch as well as the head office. While recording the transaction, comma, it is to be assumed that such transaction has been effected. Such transaction has been effected with head office. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय ये अज्यूम किया जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो हेड ऑफिस के साथ में इफेक्ट किया गया है. चाहे से दो ब्रांच में डीलिंग हो चुकी हो, ब्रांच ने फिजिकली आपस में गुड्स ट्रांसफर कर लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. जब अकाउंटिंग एंट्रीज बनाएंगे तो ये मानना है कि हेड ऑफिस के थ्रू इसको रूट किया जाएगा. ओके, हैज बीन इफेक्टेड विथ हेड ऑफिस. गॉट द पॉइंट? एग्जाम्पल लेके समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मुंबई ब्रांच pays an expense of rupees 10,000 on behalf of चेन्नई ब्रांच. मुंबई ब्रांच ने चेन्नई ब्रांच के लिए 10,000 का एक्सपेंस पे कर दिया. कोई सा भी एक्सपेंस हो सकता है. द हेड ऑफिस इज एट दिल्ली. हेड ऑफिस इज एट दिल्ली.
ठीक है बच्चों, ये अपना एग्जाम्पल है। मुंबई ब्रांच ने चेन्नई ब्रांच के बिहाफ पे 10,000 का एक्सपेंडिचर पे कर दिया, हेड ऑफिस दिल्ली में है, इसको रिकॉर्ड कैसे करा जाएगा जरा समझिए। दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द books of accounts. This will be recorded in the books of accounts of all 3 units. तीनों में एंट्री बनाना है। This will be recorded in the books of accounts of all 3 units as follows. तो बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये एंट्री बनाना सिखा रहा हूं। कैसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्स्ट आर द बुक्स ऑफ मुंबई ब्रांच, बुक्स ऑफ मुंबई ब्रांच। सेकेंड इज द बुक्स ऑफ चेन्नई ब्रांच, and third are the books of Delhi head office, books of Delhi head office। तीनों यूनिट्स में आपको एंट्री क्रिएट करनी है। सो मुंबई ब्रांच ने एक्सपेंस पे करा चेन्नई ब्रांच का, तो एक्सपेंस किसके लिए पे हुआ? एक्सपेंस पे हुआ चेन्नई ब्रांच के लिए, यानी कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कौन सी ब्रांच में होना चाहिए? चेन्नई ब्रांच में, बिकॉज एक्सपेंस ब्रांच के लिए इनकर हुआ है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट चेन्नई ब्रांच में होगा। बट जो कैश है वो किसने पे करा? कैश पे करा मुंबई ब्रांच ने। सो टू कैश अकाउंट कौन सी ब्रांच में किया जाएगा? टू कैश अकाउंट मुंबई ब्रांच में किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट चेन्नई ब्रांच में हुआ, टू कैश अकाउंट मुंबई ब्रांच में हुआ। अब आपको मैंने क्या समझाया कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन दो ब्रांचेस के बीच में होगा तो हमें ऐसा मानना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो चाहे से फिजिकली ब्रांच ने इफेक्ट किया है, बट अकाउंटिंग वाइज ये जो ट्रांजैक्शन है वो हेड ऑफिस के साथ में हुआ है। यानी कि मुंबई ब्रांच विल अज्यूम दैट कि उसने एक खर्चा चेन्नई ब्रांच के लिए नहीं करा, उसने एक खर्चा हेड ऑफिस के लिए किया है। सो मुंबई ब्रांच में एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहां पे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट से आ जाएगा? 10,000 से आ जाएगा। ठीक है, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 rupees. So here Mumbai branch is assuming that it has incurred the expenditure for head office and not for the branch. ये हमारा जनरल assumption है जो हमें लेना है in case of all the inter branch transactions. Are you getting my point? वहीं पे चेन्नई ब्रांच को क्या अज्यूम करना है कि चाहे से खर्चा उसके लिए मुंबई ब्रांच ने पे कर दिया हो, बट चेन्नई ब्रांच को यह मानना है कि ये जो खर्चा है वो मुंबई ब्रांच ने नहीं करा, हेड ऑफिस ने करा है। यानी कि चेन्नई ब्रांच को किसको पैसा पे करना है? हेड ऑफिस को। और मुंबई ब्रांच को पैसा किससे रिसीव करना है? हेड ऑफिस से। ठीक है ना, चेन्नई ब्रांच से रिसीव नहीं करना। ऑल दो ट्रांजेक्शन मुंबई चेन्नई ब्रांच के बीच में हुआ, बट बीच में कौन आ गया? बीच में हेड ऑफिस कूद पड़ा। तो हमें यह मानना है कि दोनों ब्रांच ने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जो करना है वो किसके थ्रू करना है? हेड ऑफिस के थ्रू करना है। तो यहां पे हो जाएगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। अमाउंट इज 10,000। सब बच्चों को ये थीम जो है वो समझ में आ रहा है इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन का। वहीं पे दिल्ली हेड ऑफिस को एंट्री कैसे बनाना है? बच्चों हेड ऑफिस के लिए बहुत सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्सपेंसेस? रिसीवर ऑफ द एक्सपेंस है चेन्नई। हु इज द सेंडर ऑफ द कैश? सेंडर ऑफ द कैश फॉर एक्सपेंस मुंबई। तो दिल्ली एचओ के लिए क्या एंट्री बनेगा? दिल्ली एचओ के लिए एंट्री बनेगा चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट, चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू मुंबई ब्रांच अकाउंट।
चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू मुंबई branch account with amount of 10,000. Okay, is the concept clear? This is the recording way of an inter-branch transaction. Although the transaction was taken place between the two branches, still we have assumed that accounting wise it is being taken through the head office. Okay, बात समझ में आ रही है? तो हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा? रिसीवर ब्रांच टू सेंडर ब्रांच। हेड ऑफिस के लिए एंट्री बनेगा रिसीवर ब्रांच टू सेंडर ब्रांच, और जो ब्रांचेस हैं वो आपस में ये अज्यूम करेंगे कि दे हैव डन द ट्रांजैक्शन फॉर एचओ एंड नॉट फॉर देयर ब्रांच। डन? नोट कर लें जरा एग्जाम्पल अगर कुछ रह गया इसमें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वैसे आप देखिए आज हमारी 3rd क्लास है और अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन बिगिन नहीं कराए। हम अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे जा रहे हैं। तो आप देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना कितना जरूरी है। एक बार अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर आपको चैप्टर को आगे पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ओके, देखिएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट था रिकॉर्डिंग ऑफ द बेसिक जर्नल एंट्रीज बिटवीन हेड ऑफिस एंड द ब्रांच। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट हमने अभी समझा है द इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। आपको मैंने कहा था कि मैं 4th पॉइंट में आपको इनका मर्जर करना सिखाऊंगा। तो सेकेंड पॉइंट सबको समझ में आ चुका है। 3rd पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चों। 3rd पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन। इट इज द पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन, वैसे ये रिकंसिलिएशन जो टर्म है आपने बहुत बार सुना हुआ है, जैसे कि BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्यों बनाया जाता है? डिफरेंसेस को करेक्ट करने के लिए। अगर पासबुक का बैंक बैलेंस कुछ और शो करता है और कैश बुक का बैंक बैलेंस कुछ और शो करता है, तो दोनों को मैच कराने के लिए अपन प्रिपेयर करते हैं BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहां पे रिकंसिलिएशन किसका होगा? बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों, ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए या दो ब्रांचेस के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए वो सभी जगह पर रिकॉर्ड होते हैं। ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट से भी रिकॉर्ड होते हैं और हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट से भी रिकॉर्ड करे जाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 यानी कि पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 में आपको मैंने एग्जांपल्स दिए कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होते हैं या दो ब्रांचेस के बीच में हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो उनकी एंट्रीज हैं वो दोनों किताबों में रिकॉर्ड करी जाती हैं, या जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं सब में रिकॉर्ड करी जाती हैं। यानी कि प्रैक्टिकली ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हेड ऑफिस का अकाउंट मेंटेन होता है और हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ब्रांच का अकाउंट मेंटेन होता है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो दोनों अकाउंट्स हैं वो सेम बैलेंस शो करने चाहिए? बताइए। जैसे कि अगर हम ये माने कि हेड ऑफिस ने और ब्रांच ने ये सारी की सारी एंट्रीज प्रिपेयर कर ली, जो एंट्रीज आपको मैंने सिखाई थी फ्रॉम पॉइंट ए टिल व्हाट, टिल पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट A टिल पॉइंट P, आपको मैंने जितनी भी एंट्री सिखाई हेड ऑफिस और ब्रांच ने दोनों ने अपनी किताबों के अंदर ये एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया है, जो भी आपको मैंने सिखाया था। उसके अलावा हेड ऑफिस और ब्रांच ने ये इंटर ब्रांच की एंट्रीज भी रिकॉर्ड कर ली हैं। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जो इन दोनों के बैलेंसेस हैं वो सेम रिफ्लेक्ट हो, यानी कि हेड ऑफिस में जो ब्रांच का अकाउंट है और जो ब्रांच में हेड ऑफिस का अकाउंट है उसका बैलेंस सेम आना चाहिए ना, आना चाहिए, प्रैक्टिकली आना चाहिए। बट देयर आर सम रीजंस जिसकी वजह से शायद ये बैलेंस सेम ना आए, ये बैलेंस अलग अलग आ जाए। यानी कि हो सकता है कि ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हेड ऑफिस का अकाउंट शो करता है
अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। ठीक है, ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हेड ऑफिस अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर 40,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ब्रांच का बैलेंस है वो डेबिट में 40,000 आना चाहिए, बट यहां पे ऐसा नहीं है। हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ब्रांच का बैलेंस है दैट इज शोइंग ओनली 30,000। इसका मतलब कि क्या कुछ रिकॉर्डिंग के अंदर मिस्टेक हुआ है? कुछ भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग का मिस्टेक भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एंट्री का ओमिशन भी हो सकता है। तो हमें इनको करेक्ट करना है और इसी को अपन क्या बोलते हैं? रिकंसिलिएशन। यानी कि बच्चों दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मर्जर से पहले हेड ऑफिस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ब्रांच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मर्जर से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। मतलब कि हमें दोनों में जो बैलेंसेस शो किए जाते हैं, जो इंटर यूनिट अकाउंट के बैलेंसेस शो करे जा रहे हैं, उन बैलेंसेस को हमें एक बराबर करना है। ठीक है, और एक बराबर करने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिकंसिलिएशन। तो इसकी रिक्वायरमेंट कहां पे नहीं होगी? जहां पे दोनों के बैलेंसेस पहले से बराबर दे रखे हैं। बट जिस भी पॉइंट में दोनों के बैलेंस बराबर नहीं है, इसका मतलब कि आपको रिकंसाइल करके उसको बराबर लेकर आना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिखें जरा। जनरली the branch account in books of head office, generally the branch account in the books of head office must tally with the head office account in books of branch। तो बच्चों जनरल रूल ये है कि इन दोनों अकाउंट्स को आपको टैली करवाना है, मैच करवाना है। बट देयर माइट अराइज some differences between the balances of these two accounts। But there might arise some differences between the balances of these two accounts। Full stop। It is essential to reconcile them। It is essential to reconcile them in such a situation। तो बच्चों अगर ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है तो फिर रिकंसिलिएशन करना बहुत जरूरी है। इट इज एसेंशियल टू रिकंसाइल देम इन सच अ सिचुएशन। ओके, रिकंसिलिएशन का आपको मीनिंग समझ में आ गया। हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ब्रांच का अकाउंट अवेलेबल होगा, ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हेड ऑफिस का अकाउंट अवेलेबल होगा। क्योंकि ये जो दोनों बैलेंसेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, तो इनका बैलेंस भी सेम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बट अगर सेम बैलेंस रिफ्लेक्ट ना हो तो इसका मतलब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। ओके, तो सवाल ये उठता है कि सर अगर इन दोनों में डिफरेंसेस शो हो जाते हैं तो डिफरेंस के पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं? तो इसको भी समझना जरूरी है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं द रीजंस behind the differences in balance are as follows। So there are four important reasons। Okay, there are four important reasons due to which reconciliation might be required।
4 ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें रिकंसिलिएशन की नीड होगी। जरा देखें आप वो 4 रीजन कौन कौन से हैं। सो दीज आर द 4 रीजंस। यू विल ऑल नोट देम डाउन। इनको नोट कर लें पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चारों रीजंस, इनका मीनिंग आपको समझाऊंगा, और फिर इनकी एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जरा नोट करें इन चारों रीजंस को। We are trying to understand the reason behind the differences in the head office account and the branch account. Why do those differences arise? उसके पीछे 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, नोट करने सभी बच्चों को।
हाँ जी बच्चों, कॉपी कर लिया सबने? देखिएगा, 4 रीजंस हैं, समझते हैं सारे रीजंस को। पहला रीजन लिखा है गुड्स डिस्पैच्ड बाय एचओ नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच, दीज गुड्स मे बी इन ट्रांजिट। बच्चों ये जो पॉइंट नंबर ए है और पॉइंट नंबर बी है, इन दोनों को क्यूमुलेटिवली हम क्या बोल देते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट। सो अज्यूम दैट हेड ऑफिस इज सेंडिंग द गुड्स टू द ब्रांच और ब्रांच इज सेंडिंग द गुड्स टू द हेड ऑफिस। दोनों में से कोई सा भी केस हो सकता है। और वैसे तो हमने ये केस पहले से डिस्कस किया था। आप देखें जरा, फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने आपको लास्ट में लिखवाया था गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। देखिए जरा, गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस एंड गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस बाय द ब्रांच। पॉइंट नंबर एम एंड पॉइंट नंबर एन। जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करता है तो हेड ऑफिस एंट्री बनाता है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। एंड जो ब्रांच है वो क्या एंट्री बनाता है? गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ टू दी एचओ अकाउंट, राइट। अब सोचिए, हेड ऑफिस ने अपनी ओर से गुड्स को डिस्पैच कर दिया है। हेड ऑफिस ने अपनी ओर से गुड्स को डिस्पैच कर दिया, बट ब्रांच के पास ईयर एंड तक गुड्स रिसीव नहीं हुए। वो गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है। ट्रांजिट का मतलब अभी तक पहुंचे नहीं है, ऑन दी वे हैं, गुड्स आ जाएंगे बाद में। बट प्रॉब्लम क्या हुआ? गुड्स आने से पहले ईयर एंड हो गया और हमें ईयर एंड पे क्या प्रिपेयर करने थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप मुझे बताएं कि क्या ब्रांच की ओर पे अभी इसका एंट्री बन चुका है? नहीं बना। हेड ऑफिस ने तो गुड्स भेजते ही एंट्री बना दिया था। हेड ऑफिस ने गुड्स को डिस्पैच करते ही एंट्री बना दिया ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। बट क्योंकि ईयर एंड हो चुका और अभी तक ये गुड्स ब्रांच के पास रिसीव नहीं हो पाए, तो ब्रांच एंट्री नहीं बना पाया। ब्रांच कौन सा एंट्री नहीं बना पाया? गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। तो क्या ब्रांच को ये एंट्री बना लेना चाहिए? अगर ब्रांच ईयर एंड होने से पहले ही, चाहे से उसके पास में गुड्स रिसीव ना हुए हो, अगर ब्रांच ये एंट्री बना दे गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ, तो ये अकाउंटिंग वाइज इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आपने गुड्स मिलने से पहले ही एंट्री बना दिया। तो ब्रांच को कौन सा एंट्री बनाना चाहिए? क्योंकि आप समझिए, इस ट्रांजैक्शन की वजह से डेफिनेटली एक डिफरेंस राइज होगा। समझना क्यों? हेड ऑफिस ने गुड्स को डिस्पैच करा, हेड ऑफिस ने एंट्री बना दिया ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। मान लेते हैं ट्रांजैक्शन का अमाउंट 10,000 है, तो आप समझ के देखिए कि हेड ऑफिस ने ऑलरेडी ब्रांच को 10,000 रुपीज से डेबिट कर दिया है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को ऑलरेडी 10,000 रुपीज से डेबिट कर दिया, बट ब्रांच ने अभी तक हेड ऑफिस को क्रेडिट नहीं किया। ब्रांच ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये वाली एंट्री अभी तक नहीं बनाई, तो ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हेड ऑफिस का अकाउंट अभी तक 10,000 के अमाउंट से क्रेडिट नहीं हो पाया। आप समझ सकते हैं इन दोनों के बीच में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। और क्योंकि ये डिफरेंस आएगा तो हमें क्या करना है? रिकंसिलिएशन करना है। बच्चों, इसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट। यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड करे, ब्रांच के पास ईयर एंड तक पहुंच नहीं पाए, तो ब्रांच के लिए बन चुका है गुड्स इन ट्रांजिट। वहीं पे पॉइंट नंबर बी क्या था? पॉइंट नंबर बी में ये लिखा है कि अगर ब्रांच ने गुड्स रिटर्न करे हेड ऑफिस को, बहुत बार ऐसा होता है गुड्स डिफेक्टिव आ जाएं या गुड्स अनसोल्ड रह जाएं, तो ब्रांच जो है वो गुड्स को एचओ को फिर से लौटा देता है। अब ब्रांच ने गुड्स को लौटाया, तो ब्रांच ने गुड्स लौटाते ही एंट्री बना दिया हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ अकाउंट। तो ब्रांच की किताब के अंदर हेड ऑफिस का अकाउंट डेबिट हो चुका है, बट ईयर एंड तक हेड ऑफिस के पास में वो गुड्स रिसीव नहीं हो पाए। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच के अकाउंट को अभी तक क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि हेड ऑफिस के पास में वो गुड्स अभी तक लौट कर नहीं आ पाए, ट्रांजिट में है, अभी भी ऑन द वे है। तो आप देखिए अगेन इन दोनों के अकाउंट्स के बीच में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, क्योंकि ब्रांच की किताब के अंदर हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट हो चुका है, बट हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट होना बाकी है। तो डिफरेंस का रीजन बन चुका है। क्या आपको पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी समझ में आ रहे हैं? पक्का? जो हमारे ये डिफरेंसेस के रीजन है, इसके अंदर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी समझ में आ गया। पॉइंट ए में क्या था? हेड ऑफिस ने गुड्स डिस्पैच करे ब्रांच के लिए, ब्रांच के पास अभी रिसीव नहीं हो पाए। पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है? ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिए, लौटा दिए हेड ऑफिस को, बट अभी तक हेड ऑफिस के पास में नहीं पहुंच पाया। इसी को अपन क्या बोलते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री जो है वो किसे बनानी चाहिए? आई थिंक इट्स वेरी मच लॉजिकल। जब हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड करे, तो हेड ऑफिस ने ऑलरेडी एंट्री बना दिया। एंट्री कहां पे बनना बाकी है? ब्रांच में। तो एंट्री कौन बनाएगा? ब्रांच बनाएगा। सेकेंड पॉइंट के अंदर इन पॉइंट बी ब्रांच ने ऑलरेडी गुड्स सेंड कर दिए, तो ब्रांच तो एंट्री बना चुका होगा, बट अभी तक गुड्स कहां पहुंचना बाकी है? हेड ऑफिस के पास पहुंचना बाकी है।
तो अब एंट्री कौन बनाएगा? हेड ऑफिस बनाएगा। यानी पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी की एंट्रीज का रूल क्या बन गया कि जो भी रिसीविंग यूनिट है उसको गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री क्रिएट करना है। अगर रिसीविंग यूनिट ब्रांच है, यानी पॉइंट नंबर ए में ब्रांच के पास गुड्स आएंगे, तो ब्रांच क्या एंट्री बनाएगा? ब्रांच विल मेक द एंट्री गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। यानी कि ब्रांच एंट्री ये नहीं बनाएगा गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि अभी तक उसको प्रैक्टिकली गुड्स मिले नहीं है। जब गुड्स मिलेंगे तो एंट्री बना सकते हैं गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। बट यहां पे ईयर एंड हो गया, गुड्स मिलना बाकी है, इसीलिए एंट्री क्या बनेगा? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। वहीं पे पॉइंट नंबर बी में एंट्री कौन बनाएगा? हेड ऑफिस, क्योंकि ब्रांच तो गुड्स डिस्पैच करते ही एंट्री बना चुका है, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So entry for point A and point B is to be made by the receiving unit. Okay. Now same is the case of point C. Point C भी बच्चों हमने डिस्कस करा था ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 के अंदर। देखिए ये था कैश का, कैश सेंट बाय एचओ टू ब्रांच और कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू एचओ। जिस तरह से हम गुड्स का लेन देन करते हैं एच और ब्रांच के बीच में, उस तरह से कैश का लेन देन भी किया जाता है एच और ब्रांच के बीच में। तो हेड ऑफिस ने कैश सेंड करा ब्रांच को अभी तक नहीं मिल पाया। वैसे प्रैक्टिकली अगर आज के जमाने में देखा जाए तो ये जो भी कैश ट्रांसफर्स हैं वो ऑनलाइन करे जाते हैं, जहां पे हाथों हाथ इंस्टेंटली, अगर आईएमपीएस कराए तो इंस्टेंटली, अगर एनईएफटी कराए तो विद इन 2 to 3 आवर्स ऑन द सेम वर्किंग डे पैसा पहुंच जाता है। बट मान लीजिए अगर आपने फिजिकली कैश सेंड करा था, मान लीजिए आपने चेक बनाकर चेक डिस्पैच कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जब तक चेक पहुंचेगा नहीं ब्रांच के पास में, तब तक वो चेक को एनकैश नहीं करा पाएगा। यानी कि यहां पे मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि आपने फिजिकली एक चेक बनाकर भेजा और वो चेक अभी तक पहुंच नहीं पाया, किसके पास? ब्रांच के पास। तो उस केस में फिर एंट्री कैसे बनेगी? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो कैश सेंट बाय एचओ टू ब्रांच को कैश भेजा किसने? एचओ ने चेक डिस्पैच करते ही एंट्री बना दिया, बट अभी तक वो चेक या ड्राफ्ट जो भी है वो ब्रांच के पास में पहुंचा नहीं है, तो ब्रांच एंट्री नहीं बना पाएगा। एचओ ने एंट्री बना दिया, ब्रांच ने एंट्री नहीं बनाया, अगेन यहां पे डिफरेंस अराइज होगा दोनों के बैलेंसेस के अंदर। इन द सेम वे ब्रांच ने जो भी फंड्स कलेक्ट करे थे वो एचओ को रेमिट कर दिए, तो ब्रांच ने एंट्री बना दिया, बट अभी तक ईयर एंड तक एचओ के पास में वो चेक नहीं पहुंच पाया, तो वो चेक क्या है? ट्रांजिट में है। तो इसका एंट्री कैसे बनाया जाएगा? जस्ट इन द सेम वे हमने गुड्स इन ट्रांजिट का जो एंट्री सीखा है, वैसा ही सेम एंट्री कैश इन ट्रांजिट का भी बनाना पड़ेगा। यानी जो भी रिसीविंग यूनिट है वो उसका एंट्री बना लेगा। तो अगर हम एंट्री नंबर ओ की बात करें, एंट्री नंबर ओ, कैश सेंट बाय एचओ टू ब्रांच, तो एचओ ने तो भेजते ही एंट्री बना दिया ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, बट एंट्री कहां पे बनना बाकी है? ब्रांच में एंट्री बनना बाकी है। तो ब्रांच क्या एंट्री बनाएगा? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। एंड एंट्री नंबर पी में ब्रांच ने एचओ को कैश सेंड कर दिया, तो ब्रांच ने ऑलरेडी कौन सा एंट्री बना दिया? ब्रांच ने एंट्री क्रिएट कर दिया है हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री कहां पे होना बाकी है? एंट्री एचओ में होना बाकी है। तो एचओ क्या एंट्री बनाएगा? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। यानी बच्चों एक बड़ा सिंपल सा रूल निकल कर आता है कि जितने भी ट्रांजिट के आइटम्स हैं वो हमेशा कौन रिकॉर्ड करेगा? रिसीविंग यूनिट रिकॉर्ड करेगा, बिकॉज जो सेंडिंग यूनिट है वो उसकी एंट्री पहले से बना चुका था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब मैं यहां पे एक नोट डाल रहा हूं आप सबके लिए, और आपको भी ये लिखना है मेरे साथ में, नोट फॉर ए कॉमा बी, फॉर ए कॉमा बी एंड सी, फॉर ए कॉमा बी एंड सी अबव, comma, the transaction of transit item, the transaction of transit item has to be recorded
the transaction of transit item has to be recorded by the receiving unit, यानी कि जो ट्रांसिट आइटम का एडजस्टमेंट है वो हमेशा रिसीविंग यूनिट को करना है, जो एंड रिसीवर है वो ही उसकी एंट्री बनाएगा, क्योंकि सेंडिंग यूनिट ने तो ऑलरेडी एंट्री बना दी होगी। दिस इज बिकॉज द सेंडिंग यूनिट must have already recorded the transaction। आप सोचिए कि अगर सेंडिंग यूनिट ने भी एंट्री नहीं बनाया होता तो फिर तो डिफरेंस आता ही नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? डिफरेंस आने के पीछे रीजन क्या है कि सेंडिंग यूनिट पहले से एंट्री बना चुका है बट रिसीविंग यूनिट ने एंट्री नहीं बनाया, तभी तो डिफरेंस अराइज हो रहा है दोनों के बैलेंसेस के अंदर। अगर सेंडर भी एंट्री ना बनाए और रिसीवर भी एंट्री ना बनाए तो फिर तो बैलेंस सेम ही आएगा ना, बैलेंस कभी डिफरेंट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको ट्रांसिट आइटम के लिए हमेशा यह अज्यूम करके चलना होता है कि सेंडर यूनिट ऑलरेडी एंट्री बना चुका है और रिसीविंग यूनिट को एंट्री बनाना बाकी है। ठीक है, तो ट्रांसिट आइटम्स का एंट्री हमेशा कौन प्रिपेयर करेगा? ओनली द रिसीवर यूनिट, द वन हु इज रिसीविंग विल मेक द एंट्री फॉर द ट्रांसिट आइटम्स। इज दैट क्लियर? चलिए अब आता है रूल नंबर डी, यानी रीजन नंबर डी। यहां पे क्या है? रिसीट ऑफ इनकम और पेमेंट और एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ब्रांच ट्रांजैक्टेड डायरेक्टली बाय द एचओ और वाइस वर्सा, hence not recorded at the respective ends wherein they are normally to be recorded। अब यहां पे ये लिखा कि हेड ऑफिस ने ब्रांच के बिहाफ पे कुछ पैसा कलेक्ट करा, हेड ऑफिस ने ब्रांच के बिहाफ पे कुछ पैसा कलेक्ट करा, या हेड ऑफिस ने ब्रांच के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस इनकर करा, बट उसकी एंट्री जिसके लिए इनकम कलेक्ट हुई थी या जिसके लिए एक्सपेंस पे करा था वहां पे उसका एंट्री रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स देता हूं जो हमने ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 में लिखे हुए हैं। देखिए जरा, हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए खर्चा करा, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बी, गुड्स बॉट फॉर ब्रांच पेड बाय एचओ। तो गुड्स ब्रांच के लिए खरीदे गए, हेड ऑफिस ने पेमेंट करा, हेड ऑफिस ने पेमेंट करते ही एंट्री बना दिया, बट ब्रांच में अभी तक एंट्री नहीं हो पाया, यानी ब्रांच ने अभी तक ये वाली एंट्री नहीं बनाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू एचओ। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बैलेंस में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, राइट। उसके बाद आप देखिए, कलेक्शन ऑफ ब्रांच डेटर्स मेड बाय एचओ। ब्रांच के डेटर्स का कलेक्शन एचओ ने करा, तो एचओ ने पैसा रिसीव करते ही एंट्री बना दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, बट अभी तक ब्रांच ने एंट्री नहीं बनाया। अगेन क्या हुआ? डिफरेंस राइज हो गया। इन द सेम वे मैं आपको और भी एग्जांपल दे देता हूं। देखिए आप, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, ब्रांच के खर्चों का पेमेंट एचओ ने करा, एचओ ने खर्चा पे करते ही एंट्री बना दिया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, बट अभी तक ब्रांच ने एंट्री नहीं बनाया है एक्सपेंस टू एचओ। फिर से क्या राइज होगा? डिफरेंस राइज होगा। यानी कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच के लिए कोई खर्चा करता है या हेड ऑफिस ब्रांच के बिहाफ पे कोई इनकम कलेक्शन करता है बट उसकी एंट्री ब्रांच नहीं बनाता है, ठीक है, और हेड ऑफिस बना लेता है, डिफरेंसेस आ सकते हैं। या फिर अगर ब्रांच ने एचओ के बिहाफ पे कोई खर्चा करा या फिर ब्रांच ने एचओ के बिहाफ पे कोई इनकम रिसीव करा, उसका एंट्री ब्रांच ने बना लिया बट एचओ ने नहीं बनाया, तो भी अगेन क्या राइज होगा? डिफरेंस राइज होगा। तो आप मुझे बताएं, इसका एंट्री कौन बनाएगा? जहां पे एंट्री बनना बाकी है, जिसने एंट्री बना लिया वो तो फिर से रिपीट करेगा नहीं, बट जहां पे एंट्री नहीं हुआ वहां पे आपको एंट्री क्रिएट करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका पॉइंट नंबर डी था, रिसीट ऑफ इनकम और पेमेंट और एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू द ब्रांच ट्रांजैक्टेड डायरेक्टली बाय द एचओ। ठीक है, ब्रांच की इनकम का कलेक्शन या ब्रांच के खर्चे डायरेक्टली एचओ ने उसके लिए पेमेंट कर दिया या डायरेक्टली एचओ को रिसीव हो गया बट वो ब्रांच में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, या फिर वाइस वर्सा लिखा हुआ है, यानी कि इनकम कलेक्शन ब्रांच ने करा एचओ के बिहाफ पे या एक्सपेंस का पेमेंट ब्रांच ने करा एचओ के बिहाफ पे, बट हमने इसको रिस्पेक्टिव एंड्स पर रिकॉर्ड नहीं करा, यानी कि जहां पे ब्रांच ने पेमेंट करा वहां पे एचओ में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, या जहां पे एचओ ने पेमेंट करा ब्रांच में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो वहां पे हमें अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिससे दोनों बैलेंसेस बराबर आ जाएं।
ठीक बात है, तो ये हमारा पॉइंट डी है। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। पॉइंट ए बी सी डी, दीज आर द रीजंस बिहाइंड द डिफरेंसेस ड्यू टू विच व्हाट इज रिक्वायर्ड, रिकंसिलेशन इज रिक्वायर्ड। यानी कि जहां पे ये डिफरेंस नहीं होगा वहां पे हम रिकंसिलेशन भी नहीं करेंगे, बट जहां पे ये डिफरेंस होगा हमें डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट क्लियर? चलिए अब इन सारी चीजों को अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। ओके, रिकंसिलेशन के पॉइंट के लिए भी आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं, आप सबको नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल सारे बच्चे नोट करेंगे। इसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से हम डिफरेंसेस को रिकंसाइल कर सकते हैं। आई हैव टेकन अ वेराइटी ऑफ पॉइंट्स। देखिए काफी सारे मैंने पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पे, काफी सारे रीजंस बनाए हैं डिफरेंसेस के लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए सारी की सारी कहानी। नोट करेंगे एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, बट आपको नोट अभी करके जाना है। यू विल नोट द एंटायर एग्जाम्पल। ओके,
तो ये टेबल सबने नोट कर लिया है, पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। देयर आर 6 डिफरेंट पॉइंट्स, नोट करें इनको। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन करेंगे एंड विल प्रोसीड टू द मेन स्टेप। जो बच्चों हमारा मेन स्टेप था कि हमें मर्जिंग करना है दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, हम उस पॉइंट को भी शुरू करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। यानी अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे मर्जिंग किया जाता है दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। राइट, फटाफट से नोट कर लीजिए 6 पॉइंट्स।